Good morning, students. Myself, Mona Yadav. Let's start today's discussion on our chapter 2, class 9th, economics, that is the people as a resource. So, students, in our previous lecture, we have discussed about the two types of unemployment. Here you can see first seasonal unemployment and second is disguised unemployment. So in both the places we face the problem of unemployment, that is in both the places like rural area and urban area. Okay, so in rural area we have unemployment problem like two types of unemployment. The first one is seasonal unemployment. So in urban areas mostly we have educated unemployment situation. So we will discuss in detail about seasonal, disguised and educated unemployment. Let's start first with the seasonal unemployment. Okay, so what is the seasonal unemployment? We can see this clearly in agricultural sector that the people who are depend on agriculture, they face such kind of problem. Means seasonal unemployment happens when people are not able to find jobs during some months of the year. People dependent upon agriculture usually face such kind of problem. Seasonal unemployment means मौसमी बेरोजगारी. सीजन के अकॉर्डिंग होने वाली बेरोजगारी को हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, ये कब होता है? When people are not able to find jobs, means जब लोगों को काम नहीं मिलता है. कब? During some months of the year, साल के कुछ महीनों में. People dependent upon agriculture usually face such kind of problem. So why they face such kind of problem? Because in the agriculture sector there are busy seasons, only the farmers required a lot of laborers. ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ बिजी सीजन्स होते हैं जब फार्मर्स को लेबरर्स की रिक्वायरमेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ए बिजी सीजन टाइम लाइक sowing, harvesting, weeding and threshing. Okay, so certain months do not provide much work to the people dependent on agriculture. मीन्स साल के कुछ महीने ऐसे होते हैं जिस टाइम ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम लोगों को काम ज़्यादा मिलता है. जैसे कटाई का टाइम होता है या कुछ अदर चीज़ें होती है जो एग्रीकल्चर फील्ड में जब लेबर्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है. ठीक है, तो थ्रेशिंग के टाइम में हो गया, जैसे हार्वेस्टिंग के टाइम में हो गया. बट जो बचे हुए मंथ्स है उस टाइम में एग्रीकल्चरल फील्ड में लोगों को कुछ वर्क नहीं मिलता है, तो हम उसको कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, so simply seasonal unemployment happens when people are not able to find jobs during some months of the year. जब फील्ड्स में, खेतों में कुछ काम नहीं होता है और लोगों को कुछ वर्क नहीं मिल पाता है, तो उस टाइम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है. देन यू कैन सी ये कहाँ पे हुआ? रूरल एरियाज में. ओके, ग्रामीण इलाकों में. तो इस तरह एग्रीकल्चर फील्ड में लोग इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करते हैं. ठीक है, then second one is disguised unemployment. Second point of this unemployment, in case of disguised unemployment people appear to be employed. अब इसमें क्या होता है कि इसमें completely जो people हैं वो appear तो होते हैं, means दिखाई तो देते हैं working. दे हैव एग्रीकल्चरल प्लॉट, उनके पास खुद के अपने प्लॉट्स होते हैं, मीन्स खेत होते हैं छोटे, वेयर दे फाइंड वर्क, जहाँ पे वो काम कर सकते हैं. दिस यूजुअली हैपन्स अमंग फैमिली मेंबर्स इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. ठीक है, तो इसमें एक तरह से फैमिली मेंबर्स ही इन्वॉल्व होते हैं. अब उसमें होता क्या है, जैसे किसी के पास कम फील्ड्स हैं, कम खेत है, तो वहां पे वर्क रिक्वायर्स तो होता है ओनली 5 पीपल का, बट इंगेज 8 पीपल. ठीक है, अगर किसी फैमिली में 8 मेंबर्स हैं और वो कंप्लीट जो है अपने खेत में, अपने फील्ड पे वर्क कर रहे हैं, तो वो कंप्लीट उनकी सर्विस जो है उन फील्ड्स में दी जा रही है. लेकिन एक्चुअली वहाँ जो ज़रूरत है, जो वर्क रिक्वायर्स है जितने पीपल की, वो ओनली 5 की है, लेकिन वहाँ पे इंगेज दिखाई दे रहे हैं आपको 8. तो वहाँ पे कितने एक्स्ट्रा हैं? 3 पीपल आर एक्स्ट्रा. दीज 3 पीपल ऑल्सो वर्क इन द सेम प्लॉट एज द अदर्स. The contribution made by the 3 extra people does not add to the contribution made by the 5 people. Means अगर किसी के पास एक खेत है, उस पे 5 लोगों की जरूरत है काम करने की, लेकिन उनके फैमिली मेंबर्स मीन्स टोटल 8 हैं और वो सारे उसी पे लगे हुए हैं, तो जो 3 एक्स्ट्रा पीपल हैं, 3 एक्स्ट्रा पर्सन है, वो वहां उसकी वैल्यू को ऐड नहीं कर रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे हैं, कोई कॉन्ट्रीब्यूशन अलग से नहीं हो रहा है उनका. बिकॉज क्योंकि खेती पे जितना प्रोडक्शन होना है, अगर वो 5 पीपल्स वहां काम करेंगे तो भी वो होगा, और
8 करेंगे तो भी वो उतना ही होगा। सो इफ 3 पीपल आर रिमूव्ड, ठीक है, अगर उन 3 लोगों को वहां से हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड विल नॉट डिक्लाइन, तो जो प्रोडक्शन है फील्ड का वो डिक्लाइन नहीं होगा, कम नहीं होगा। द फील्ड रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल एंड द 3 एक्स्ट्रा पीपल आर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। तो खेत में रिक्वायर थी 5 पीपल की सर्विस की, लेकिन 3 एक्स्ट्रा पीपल हैं, ठीक है, तो उनको हम कहेंगे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। ओके, सो व्हाट इज द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? इन केस ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, मीन्स लोग वर्किंग तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी जैसे हमने पढ़ा दे हैव एग्रीकल्चरल प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क, काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिस यूजुअली हैपन्स अमंग फैमिली मेंबर्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, बिकॉज वो फैमिली में सारे जो मेंबर्स हैं टोटल वो वहां पे अपना सर्विस दे रहे हैं, वहां पे अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका खुद का प्लॉट है, ठीक है, लेकिन वहां एक्चुअली रिक्वायरमेंट है ओनली 5 पीपल्स की। तो जो 3 पीपल्स है उसको हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड कहेंगे, ठीक है, जिसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इन केस ऑफ अर्बन एरियाज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम ए कॉमन फेनोमेनन, ठीक है। तो अर्बन एरियाज में किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट होता है? अभी तो हमने पढ़ा कि रूरल एरियाज में मीन्स ग्रामीण क्षेत्रों में सीजनल एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, और अर्बन एरियाज में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है। सो टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, सो यू हैव टू रीड दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।